Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today, we are going to cover topic number 2.7 of Unit 2. Topic name is Functions of Physical and Data Link Layer. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the functions of physical and data link layers and describe the working diagram of physical and data link layer. Course outcome that will get satisfied is CO2. You will be able to use the relevant network model for the specified data communication system. PO1, that is, there will be improvement in your basic as well as electronics engineering knowledge. So PO1 will be mapped. Then PO4, you will be able to perform experiments with this knowledge using various engineering tools like cables, various networking devices, and you will use OSI and TCP IP reference model. PO6, you will be able to work on small projects in a group or individually, and by doing this project or micro project, your oral and written communication will get improved as well as your presentation skills and interpersonal skills will be enhanced. Then with this knowledge, you will be adaptable to any technological changes in the OSI reference model. So you will be adaptable to that changes, and this knowledge will be with you for lifetime. So PO7 lifelong learning is mapped. The prerequisite to this knowledge, to this topic is you should know the 7 layers of OSI model and its diagram. Let us see working of physical layer. फिजिकल लेयर ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है. सो द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. सो दिस इज सेंडर साइड एंड दिस इज रिसीवर साइड. सो डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर है. सो डेटा लिंक लेयर से हमारे पास जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, तो वो डेटा को हमको बिट्स में कन्वर्ट करना है. ओके, सो देन दिस बिट्स आर ट्रांसमिटेड टू ट्रांसमिशन मीडियम और दिस बिट्स आर डायरेक्टेड टू द ट्रांसमिशन मीडियम. यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन मीडियम एक तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है. देन इस ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा सेंड होने के लिए इस बाइनरी बिट्स को हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तभी हमारा जो डेटा है इस ट्रांसमिशन मीडियम पे ट्रैवल कर पाएगा. So bits are converted into electrical pulses or electrical signals. Then these electrical signals are sent to the receiver. So ये जो रिसीवर का फिजिकल लेयर है उसको हम सेंड करेंगे. So रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर पे फिर से वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है those are converted back into the binary bits. So इस तरह से डेटा फिजिकल लेयर ऑफ द सेंडर साइड will transmit electrical signals to the physical layer of receiver side. Then it establishes, maintains and deactivates the physical connection. Means जब डेटा सेंड करना हो तो फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना जब तक पूरा डेटा यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता तब तक, और आफ्टर सेंडिंग कंप्लीट डेटा इस फिजिकल कनेक्शन को डीएक्टिवेट करना. तो ये सब फिजिकल लेयर का काम है. It specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specification. Means यहाँ पे हमको डेटा जो है बाइनरी बिट्स का जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ इंटरफेस लगने वाला है या फिर कन्वर्टर लगने वाला है, बोथ द साइड्स, सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड. सो नाउ लेट अस सी एग्जैक्ट फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर. So line configuration is the first function. It defines the way how two or more devices can be connected physically. So जैसे ही हम इस डायग्राम में देखा है हमने कि दो डिवाइसेस को या फिर दो डिवाइसेस की जो प्रोसेसेस है फिजिकल लेयर की, उनको कैसे लाइन अप करना, उनको कैसे कनेक्ट करना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है हमारा फिजिकल लेयर. देन डेटा ट्रांसमिशन.
It defines the data transmission mode, whether simplex, half duplex or full duplex mode between two devices on the network. So हमारे डेटा ट्रांसमिशन का मोड किस तरह से होने वाला है ये डिसाइड करता है हमारा फिजिकल लेयर. Then it decides the topology, means how network devices are arranged. Network devices सेंडर लेयर पे और रिसीवर लेयर पे किस तरह से अरेंज है और किस तरह से अरेंज उनका होना चाहिए अरेंजमेंट, ये टोपोलॉजी को वो डिफाइन करता है. Then signals, it determines the type of signal used for transmitting the information. तो हमको कौन से सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए, हमको पल्सेस चाहिए या वायरलेस सिग्नल्स चाहिए, हमको कौन से सिग्नल्स चाहिए हमको डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो वो फिजिकल लेयर का फंक्शन है डिसाइड करना. देन नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर. सो डेटा लिंक लेयर का ये डायग्राम है. सो थर्ड लेयर इज द नेटवर्क लेयर. सो नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा मिलेगा वो हम डेटा लिंक लेयर को पास करते हैं एंड देन डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में अरेंज करती है और फ्रेम्स में अरेंज करने के बाद वो फिजिकल लेयर को सेंड करती है डेटा. तो दिस इज द सेंडर साइड एंड दिस इज द रिसीवर साइड. तो 7 लेयर्स सेंडर साइड के रहेंगे एंड 7 लेयर्स OSI मॉड्यूल के रिसीवर साइड पे रहेंगे. तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो लेयर है उसी लेयर के साथ दूसरे रिसीवर के लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी या कांटेक्ट करेगी. सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स. तो हमारा जो डेटा का फ्रेम है वो जो फिजिकल लेयर में जाने वाला है तो उसकी एरर फ्री डिलीवरी फिजिकल लेयर को किस तरह से होगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है डेटा लिंक लेयर. इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क. तो जो भी हमको डेटा पैकेट सेंड करना है उस डेटा पैकेट का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है वो फॉर्मेट डिसाइड करती है डेटा लिंक लेयर. इट प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस. सो रिलायबल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पैकेट हमने सेंड किया है वो इन बिटवीन फिजिकल लेयर पे जब हम फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं सो तभी वो पैकेट लॉस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो रिलायबली जो पैकेट हम सेंड कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर तो वो रिसीवर को मिलना चाहिए विथ गारंटी. सो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ डेटा लिंक लेयर. एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन लोकल नेटवर्क. सो यूनिकली नेटवर्क में जितने भी होस्ट है, जितने भी नोड्स है, तो यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करना. सो ये काम जो है आइडेंटिफिकेशन का और आईपी प्रोवाइड करने का काम ये हमारा डेटा लिंक लेयर करता है. नाउ वी विल सी एग्जैक्ट फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर. तो पहला फंक्शन हम बोल सकते हैं कि फ्रेमिंग. द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स. The data link layer adds header and teller to the frame. The header which is added to the frame contains the hardware destination and source address. तो जो भी हमारे पास नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आ रहा है, यहाँ से नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आ रहा है उसको एक पैकेट के फॉर्म में या फ्रेम के फॉर्म में कॉम्पैक्ट करना जरूरी है और वो फंक्शन को हम बोलते हैं कि फ्रेमिंग. कोई भी पैकेट है, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम उस डेटा को कंप्लीटली एक ही पैकेट के अंदर नहीं भेज सकते बिकॉज देयर इज द लिमिट कि हमारे पैकेट में कितना डेटा होना चाहिए, तभी वो डेटा विद इन स्पेसिफाइड कम से कम टाइम पीरियड में रिसीवर तक पहुंचेगा. तो इस तरह से हमको डेटा को रिसेंबल करना है, डेटा को डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स. तो ये फ्रेम बनाने का जो काम है उसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग और ये डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है. तो फ्रेम किस तरह से बनता है, जो भी हमारा डेटा पैकेट है तो उसका डेटा होता है बीच में, जो भी हमारा डेटा है लिमिटेड जितने बिट्स होते हैं डेटा के वो यहाँ पे रहेंगे. देन उसमें हेडर ऐड किया जाएगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में वहाँ पे ट्रेलर ऐड किया जाएगा. सो हेडर में इंफॉर्मेशन होती है कि हार्डवेयर डेस्टिनेशन क्या है, मीन्स फिजिकल एड्रेस क्या है हमारे रिसीवर का या डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस क्या है और हमारे सोर्स का एड्रेस क्या है, तो वो दोनों भी इस हेडर में मेंशन होते हैं. देन फिजिकल एड्रेसिंग, ये एक फंक्शन है. द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स अ डेस्टिनेशन एड्रेस. अभी हमने देखा है कि हेडर में सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है. द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड इन द हेडर.
तो हेडर में जो भी एड्रेस है तो उस एड्रेस को, ये फिजिकल एड्रेस होता है एक्चुअली, तो उसी फिजिकल एड्रेस पे फ्रेम सेंड करने का जो काम है वो डेटा लिंक लेयर करती है. इसीलिए फिजिकल एड्रेसिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर. नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल. Flow control is the main functionality of data link layer. It is the technique through which the constant data rate is maintained on both the sides so that no data get corrupted. It ensured that the transmitting station such as server with higher processing speed does not exceed the receiving station with lower processing speed. Flow control means what? अगर दोनों का स्पीड मिसमैच है, सेंडर और रिसीवर का दोनों का स्पीड मिसमैच है, तो सेंडर अगर फास्ट स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, पैकेट सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस स्पीड से ही वो डेटा को रिसीव कर पाए, तब क्यू में हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो पैकेट से क्यू में रह जाएंगे और ऐसा एक टाइम आएगा कि वो क्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा और हमारे डेटा के कुछ पैकेट्स वहां पे लॉस्ट होने की वहां पे पॉसिबिलिटी है. इसीलिए फ्लो कंट्रोल होना जरूरी है और ये फ्लो कंट्रोल का जो काम है, दोनों साइड का स्पीड जो मिसमैच करना है या मैच करना है स्पीड का, अगर मिसमैच होता है स्पीड तो उसको मैच करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिजिकल लेयर का है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमने कि सर्वर का स्पीड हाई है लेकिन क्लाइंट जो है, क्लाइंट रिसीवर है तो क्लाइंट का स्पीड थोड़ा लो है, तो इन दोनों के बीच में फ्लो कंट्रोल होना जरूरी है. तो ये काम जो है फ्लो कंट्रोल का, दैट इज ऑफ डेटा लिंक लेयर. नेक्स्ट है एरर कंट्रोल. सो ये जो हमारा टेलर फील्ड होता है, यहाँ पे ये जो टेलर फील्ड होता है वहां पे हम CRC चेक के कुछ बीट्स ऐड करते हैं. इसका मतलब व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा, उसमें अगर कुछ एरर आ जाता है तो CRC की वैल्यू सेंडर साइड में ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई रहेगी और वो टेलर में ऐड की हुई रहेगी. लेकिन जब रिसीवर डेटा लिंक लेयर पे, रिसीवर के डेटा लिंक लेयर में जब रिसीव करेगा उस पर्टिकुलर पैकेट को, तो वो CRC रिकैलकुलेट करेगा और अगर सेम CRC वैल्यू मिलती है जो सेंडर ने भेजी है और वो अगर वैल्यू मैच होती है तो ही हम बोलेंगे कि इट इज एरर फ्री पैकेट. सो अगर उसमें कुछ एरर आता है, मीन्स CRC की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो रिसीवर सेंडर को फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि सम पैकेट्स आर लॉस्ट या फिर डेटा में कुछ एरर है, सो यू कैन रीट्रांसमिट द करप्टेड फ्रेम्स. जो भी करप्टेड फ्रेम से लॉस्ट डेटा है वो तो रीट्रांसमिट करो, ऐसा रिसीवर सेंडर को डिमांड कर सकता है. सो ये एरर कंट्रोल जो है ये भी एक फंक्शन है डेटा लिंक लेयर. देन एक्सेस कंट्रोल. अगर एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे दो डिवाइसेस एक्टिव है, दो डिवाइसेस कनेक्टेड है, सो देयर इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल. डेटा लिंक लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल यूज होते हैं कि हम डिटरमाइन कर पाए कि कौन सा डिवाइस है जिसको हायर प्रायोरिटी है और वो लिंक पे डेटा सेंड कर सकता है. सो किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगा, अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस एक्टिव है सेम कम्युनिकेशन चैनल पे, सो कौन सा डिवाइस को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सा डिवाइस सबसे पहले डेटा ट्रांसमिट करेगा उस चैनल पे, तो ये भी एक्सेस कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है. सो ऑल दीज आर द 5 functions ऑफ डेटा लिंक लेयर. सो डियर स्टूडेंट्स, let us summarize today's lecture. Today we have studied working and functions of physical layer as well as working and functions of data link layer. I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then watch the videos frequently, and still not understood, then you can mail me your queries on following email ID. Thank you so much for listening the video. Keep learning, enjoy learning.